सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस ज्वाइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम राइमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया ऑनरेबल स्पीकर। आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रामकौर। यहाँ में हमारे टीम है फ्रॉम राइमा वैली राजेश त्रिपुरा, MDC श्री रविंद्र देवर्मा, सुनील देवर्मा, अंशु कुमार त्रिपुरा एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ में गणेश देवर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देवर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोथा। वेलकम है कहा नाम सुगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा give a few words to all of you all. इसके बाद you can ask any question. We will be happy and most welcome to give you the answer. ভাই ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 পলিউশন কোম্পানিতে প্রাইমারি থেকে নির্বাচিত হয়েছি এবং আমি IPFT 2014 থেকে এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার IPFTতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি একটা আঞ্চলিক দল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে ত্রিপুরাসা, আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই IPFT যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যে সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান নিচ্ছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই ধনঞ্জয় আমিও একজন আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজা হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের রাইমা ভ্যালি নেতৃত্বে রয়েছেন, আর কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু IPFT নয়। আমি শুধু রাইমা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরা ভ্যালি থেকেও, পর্বত থেকেও, অম্পি থেকেও
অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হবে এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন এমএলএরাও রয়েছে। তাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজার যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করবো, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠনে আমরা সামিল হব। সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরা ছাড়া কেউ মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা সাথে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটু সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে বা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এই যে ত্রিপুরাসা, আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফায় 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। अगर कोई सवाल है। सर मेरा एक सवाल था, 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग टिप्रालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो टिप्रालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद आज 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेन जो घर में विदाउट गार्जियन, तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक टिप्रालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए बीजेपी में बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने टिप्रालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं। आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं। जिस डिमांड को लेके आप लोग आए এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা বোর্ড নেই অবস্থা এভাবে রয়েছে, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার কি আশা আছে কাজ করতে? আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেইটি ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই বোর্ড কীভাবে বুঝছে। जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था टिप्रालैंड का, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक
एक एमएलए की बात आपने भी तो बताते हुए नहीं ना मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास, तो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट ट्रिपल लैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने इवन निर्मला सीतारमन ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा से मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम अभी त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ। तो वो एक तो घर पार्टी चल का अलग बात हुआ, गार्जियन लेस, पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखते 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत नहीं, स्पेशली एडीसी एरिया में। आप क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिल्लू में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट? No, Manoj, do you feel the development has not happened in the tribal areas under BJP 1? क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के ज़माने में जो कि आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी भी शायद एक पार्टनर था, तो उस भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफटी, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफ़ी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? एक्शन और कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इस पर? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछले सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशली आप बोलो ना एडीसी में क्यों 500 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट तो इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिल्लू में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिल्लू में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा सर का जो आइडेंटिटी का वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of जब कोई सा मौका में ज्वाइन करता है, कंडीशन टिकट ज्वाइन करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है, वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफिस हमसे कुमार सुनता है कि इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तीसरा मौका जा रहा हूँ। धनंजय आया है, प्लीज नॉट सेट मुझे टिकट दो मैं तीसरा मौका जा रहा हूँ। जब ऋषि केतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन चौहाटे से काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हमसे, नो ऋषि केतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके दूसरा मौका नहीं आया। जब था बिकॉज ये वोटेड टू सर्व द मौका और प्रेसिडेंट दिया, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद, इलेक्शन के 1 महीने बाद वो जो है चुनाव तो लड़ना ही है,
तो एलिजिबल कैंडिडेट इसको आप चुन लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको भी ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का ये इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन होगा 13 लाख का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफगार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है जिसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है, लेकिन अपने एरिया में जीरो है। कि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग, तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है तो ग्रेटर थिंकर। अच्छा एमएलए बाबा खाने सांगो तेबो एमएलए रो खाने को मारो तो सम अब जरा फाइकल ना जोगाजोग फाइट दं विभिन्न दलनि फाइनाय गामनुखा फाइट दं जुदि महाराजा जेहेतु चिनि गार्जेन जतन कबई दं अजरा जों एज ए तिपरासा हिसाबै जों तामा साबो तांखायाबो नायाबो उष्ण तरजायबो ताबो जराबो जों महाराजन जे ग्रेटर तिपरासा जे जतन अगमुमो जों फाइनाय जों फाइनाय आगामी दिनाव आबाद एवं विभिन्न लिडार जोगाजोग फाइनाय